प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जिसने 4 भाषा में लिखा था, उसका नाम था भगत सिंह। अभी ये देश 1.5 आदमी का ईगो पे चलते हैं। भारत का जीडीपी 7.7% कम हुआ, लेकिन अंबानी जी का धन दौलत 127% बढ़ गई। अदानी जी, अंबानी जी सब गुड फेथ में ही करते हैं, आपके लिए करते हैं, तो यू कैन नॉट प्रोसिक्यूट देम ऑल्सो। मन की बात और हर महीने आप पब्लिक एड्रेस करते हैं, अब तक किसान वर्ग के साथ बैठ के बात नहीं किया आपने। जो आपका देश के मेज पे खाना लगाते हैं, द प्रोड्यूसर इज गोइंग हंग्री। 5 साल में जो बढ़ाना था, 2 गुना बढ़ाना था क्रॉप इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, वो डिक्लाइन हुआ। जो किसान लोग दिल्ली के दरवाजा पे बैठे हैं, वो इस देश का राजनीति में बदलाव ला गया। छोटा सा एग्जीक्यूटिव, उसको लेके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज का पावर आपने उसको दे दिया। अब तक इस प्रधानमंत्री 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगाया इस देश में। आम पत्रकार में सिंपैथी है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो डिसाइड नहीं करेंगे क्या छपेंगे क्या नहीं छपेंगे। कि हम चुपचाप बैठे हैं जब 3.5 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। एग्रीकल्चरल लेबर एंड फार्मर्स are the lowest wage sector in the country. सुप्रीम कोर्ट कमेटी में किसान इश्यूज पे ऐसा एक कमेटी बनाया जिसमें एक भी किसान नहीं। कहाँ इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ? पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਈਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਪਾਵਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾ ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ
ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ हो? देखिए, जो हम कृषि संकट कहते हैं वो 10 साल से मैं कह रहा हूं कि वो कृषि संकट कृषि से बहुत आगे चल गई। आज वो कृषि संकट से वो पूरा ये समाज का संकट बन गई, सोसाइटल क्राइसिस। आप ये भी कह सकते हैं कि वो सभ्यता का संकट बन गया, सिविलाइजेशनल क्राइसिस। इसलिए कि दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या छोटा किसान का वो आज सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं जी। तो हम कह सकते हैं कि ये सभ्यता की क्राइसिस है। और दूसरी तरफ जो कृषि क्राइसिस था वो हमारा, देखिए कृषि क्राइसिस मतलब आप देखते हैं कि प्रोडक्शन कितनी गिर गई, ये कितना गिर गई, कीमत कितना बढ़ गई। मेरे सामने एक सवाल और है जी। हमारा इंसानियत कितनी गिर गई जी। कि हम चुपचाप बैठे हैं जब 3.5 लाख से ज्यादा किसान जी आत्महत्या कर चुका है जी। So I say that this is a crisis of our humanity also, a crisis of our civilization. तो वो कृषि संकट जो है वो कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं था जी। वो एक हमारा जो 1991 से जो नया आर्थिक नीति ला गया है जी, उससे ये क्राइसिस शुरू हो गया कि हम पहले जो किसान मजदूर का एक रोल है अर्थव्यवस्था में, उस रोल को निकाल के कॉरपोरेट जगत के हाथ में डाल दिया। ये आपका क्राइसिस, कृषि क्राइसिस आप ये कह सकते हैं कि कॉरपोरेट टेक ओवर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, 5 शब्द में, कॉरपोरेट हाईजैक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, 5 शब्द में वो आपका क्राइसिस है। दूसरा बात है इसके बारे में ये क्राइसिस कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं है, मैन मेड क्राइसिस है। हमने खुद बनाया हमारा आर्थिक नीति से जी। अभी भी चल रहा है जो प्राइवेटाइजेशन, जो हर चीज को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं लोग। ये देखो पैंडेमिक के बाद भी आपका ज्ञान नहीं मिला कि पब्लिक सेक्टर होना चाहिए एक्स्ट्रा। अगर जब पैंडेमिक आया, अगर गवर्नमेंट अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, पीएचसी नहीं था तो सोचो कितने और लोग मरने वाला था जी। अभी वो सब आप प्राइवेटाइज करेंगे तो कल और एक पैंडेमिक आएगा तो आप क्या करेंगे? आम लोग क्या करेंगे? अभी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को प्राइवेटाइज करेंगे, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन को प्राइवेटाइज करेंगे। हर एक चीज में नुकसान हो रहा है किसान को, हर एक आर्थिक नीति में। और अब पूरा बन रहा है एक दुनिया कॉरपोरेट जगत के कंट्रोल में। यह कह सकता है कि इस देश का कंसोलिडेशन एज अ कॉरपोरेट स्टेट वो हो रहा है। तो ये आपका क्राइसिस है। दूसरा उसमें मेन मुद्दा है कि असमानता कितना बढ़ गई, इनइक्वालिटी के साथ आता है इनजस्टिस, अन्याय। असमानता का बच्चा है अन्याय। तो ये आपका सेंट्रल इशू एंड क्राइसिस जो किसान संघर्ष में देख रहे हैं वह असमानता की बात है। दैट यू आर ट्रीटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर सोसाइटी सो अनइक्वली एंड अनजस्टली। जी सर,
सर, जैसे आपने किसान खुदकुशियों के ऊपर, आपकी जो रिसर्च है वो किसान खुदकुशियों के ऊपर है, आपको क्या लगा उस रिसर्च पे जब आप काम कर रहे हैं? अभी खुदकुशियाँ, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट जो आई है, इसमें किसान खुदकुशियाँ बढ़ी हैं या घटी हैं? आपको क्या लग रहा है, या रुकी हैं क्या? बहुत बहुत सिंपल बात है। मोदी जी ने 2017 में उसने बताया, मैंने इस देश का किसान वर्ग का इनकम 5 साल में 2 गुना बढ़ेगी। कहा ये नहीं कहा। अभी इस साल नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इस देश का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन एजेंसी, उसने रिपोर्ट लगाया 77th राउंड ऑफ NSS, सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे ऑफ फार्मिंग हाउसहोल्ड्स। तो पूरा देश का फार्मिंग किसान परिवार का सर्वे किया उसने। देखो, किसान का ये जो इनकम है वो हर व्यक्ति को नहीं कैलकुलेट करते हैं, पर कैपिटा नहीं करते हैं, पूरा परिवार का इनकम कैलकुलेट करते हैं, वो सिस्टम है। तो इस देश का एक किसान परिवार, और किसान परिवार में 5 लोग हो सकते हैं, 6 लोग हो सकते हैं। पंजाब का नंबर है 5.4। ये इसका क्या, हरियाणा का है 5.9, 5.9 मेंबर्स पर फैमिली एवरेज। पूरा देश का 5.2 होगा। और एक परिवार का इनकम, मंथली इनकम, हर सोर्स से, मजदूरी से, खेती से, सब लाइफ स्टॉक से, सब डाल के एवरेज मंथली इनकम देश का किसान परिवार 2,300 भी नहीं है, सॉरी 10,300 भी नहीं है। अभी वो 10,300 परिवार का है। अगर आप पंजाब में 5.2 या 5.4 से डिवाइड करेंगे, हर व्यक्ति का कितना, 2,000 भी नहीं, 2,000 करीब। आप किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब में आप दिखा सकते हैं हमको, या सरकारी नौकरी में दिखा सकते हैं हमको कि उससे कम पैसा। एग्रीकल्चरल लेबर एंड फार्मर्स आर द लोएस्ट वेज सेक्टर इन द कंट्री, और उसको और धक्का दे रहे हैं आप ये 3 कानून लाके। नाउ इसमें दी 77th राउंड का वो 10,300 कुछ बोलते हैं, लेकिन वो उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं किया। जब आप इन्फ्लेशन का, महंगाई का, इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करेगा, वो 10,300 से 8,300 पे गिर जाती है। वो डिवाइड करो 5.2 मेंबर पे, 1,500 आती है रफली। तो इतना अन्याय है। जो आपका देश के मेज पे खाना लगाते हैं, द प्रोड्यूसर इज गोइंग हंग्री, ये अन्याय है। जी सर, जैसे आपने प्रति किसान आमदन के बारे में बात की, जो नेशनल सैंपल सर्वे अभी आया है लास्ट 1819 का, तो पंजाब के किसान, जो पंजाब का किसान सभी, मतलब पूरे देश का ढिड भरता है। पंजाब का किसान एक मजबूत किसान मन्या जाता पूरे देश दे विच। देखिए, उनका भी हालत भी ऐसे, उनका भी बहुत एग्जैजरेशन है। देखो, आप 2 तरीके से आप यू लुक एट इट फ्रॉम 2 एंगल्स। देश के किसान के हालत में पंजाब, हरियाणा टॉप है। हरियाणा का पर कैपिटा इससे थोड़ा ज्यादा है, कम है, इसलिए कि मेंबर्स ज्यादा है उसका। लेकिन पंजाब का फैमिली मेंबर 5.2 या 5.4, उसमें 26,000 रुपया, 26,000 रुपया अगर वो डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है आपको? 5,000, 5,100, 5,200 हर व्यक्ति के लिए।
फिर आप हमको दिखाइए कोई सरकारी नौकरी में, कोई प्राइवेट सेक्टर काम में, कहीं भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में उससे कम मिलने वाला है? मिलेगा आपको? वो एक बात है। जो आप कह रहे हैं मजबूत है, वो सही बात है। क्यों उसमें मेरी बात आगे उसमें ये है कि पंजाब का किसान जो है, पंजाब खेती विच पूरे देश तो मूरे मन्निया जाता सी, मोरी मन्निया जाता सी, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ कि 4.5 साल कांग्रेस सरकार पंजाब में रही तो एक पॉलिसी तक नहीं बना सकी। जो हर सेक्टर में आ रहा है वो एग्रीकल्चर में पहुंच गया। हर सेक्टर में सरकार क्या कर रही है? पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक रिसोर्सेज लेके ग्रैब करके कॉरपोरेट जगत के हाथ में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं? हाँ, अभी कुछ दिन पहले एयर इंडिया गया, उसके पहले फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का निजीकरण होने वाला है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के होने वाला है, बहुत सारा स्कूल और हॉस्पिटल भी प्राइवेटाइज कर दिया। कृषि में एक अलग प्रॉब्लम है उनका। कृषि वैसे भी प्राइवेट सेक्टर है, कोई सरकारी सेक्टर नहीं है कृषि एग्रीकल्चर में, लेकिन ये चाहते हैं कि हमको प्राइवेट सेक्टर छोटा मोटा ये किसान लोग ये नहीं चाहते हैं, हमको कॉरपोरेट सेक्टर चाहिए। मतलब पूरा फार्मिंग बदल जाएगी समुदाय खेती से कॉरपोरेट खेती को। तो जैसा यूनाइटेड स्टेट्स का मॉडल है, यूनाइटेड स्टेट्स में 1960s में क्या 25% से ज्यादा एग्रीकल्चर पे था, आज 1% से कम है। हाँ, तो वहां तो जब वो किया इंडस्ट्रियल जॉब्स था, यहाँ क्या जॉब्स है? अब पिछले 20 साल में एक नया नौकरी नहीं बनाया किसी के लिए। सिर्फ वो गांव छोड़ के आके हम आपका नौकर या मेरा नौकर, आपका माली या मेरा ड्राइवर बन जाते हैं। तो दे आर डिस्ट्रॉइंग द प्राइवेट सेक्टर ऑफ फार्मिंग इन इंटरेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर मोनोपोली ओवर फार्मिंग। ये उनका इसलिए वो कर रहा है, और उनको अंबानी जी अडानी जी को ऑब्लाइज करने के लिए ये कानून लाया। सिर्फ उन दोनों को नहीं, और है, लेकिन वो टॉप है उसमें। जी सर, ये हम लोग समझना चाहते हैं, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ कि मोदी सरकार ਨੂੰ ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा क्या था कि कोविड की महामारी के दौरान ये 3 कानून लाने पड़े, और बिना राज्यों के साथ डिस्कस किए, बिना किस सूबिया नू अपने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ, ਜਦੋਂ कि ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको पहले ऑर्डिनेंस लेके आए, इतनी जल्दी में पास कर दिया। मतलब ये क्या, इसके पीछे की मंशा क्या है सर? The laws are, वो तीनों कानून है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी पीपल, एंटी फार्मर। पहली बात यह है कि जैसे आपने कहा, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कृषि है स्टेट सब्जेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट रहते हैं लेजिस्लेशन के लिए, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट पे हैं, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेशन राज्य सरकार लेजिस्लेट कर सकते हैं। जो लिस्ट सेंट्रल लिस्ट पे जो लेजिस्लेशन है वो सिर्फ सेंटर कर सकती हैं, जैसे डिफेंस या कस्टम्स या करेंसी, वो सिर्फ सेंटर कर सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट पे दोनों लेजिस्लेट, राज्य सरकार और सेंटर केंद्रीय सरकार दोनों लेजिस्लेशन ला सकते हैं, लेकिन अगर टक्कर होगा तो जनरली केंद्रीय सरकार का विल वो प्रिवेल होगा। यहाँ क्या किया, जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट पे है कॉन्स्टिट्यूशन में,
उस पे सेंटर ने 3 कानून लाया। ये वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब तक सुप्रीम कोर्ट इसका दे आर नॉट ओपनिंग देयर आईज एंड सेइंग दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन। उस एक्शन में 20 साल 30 साल फेडरलिज्म पीछे चल गई, पीछे हट गई। इंडिया में फेडरलिज्म डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा था 90s तक, जैसा पंचायती राज एक्ट आया, अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट आया। अभी आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु में जो भी हो, पंजाब में जो भी हो, सेंटर डिसाइड करेंगे एग्रीकल्चर। तो ये बिल्कुल अब तो एंटी फेडरल भी है। तीसरा एंटी पीपल, ये सिर्फ किसान के बारे में नहीं है ये कानून, उसमें हर नागरिक को इम्पैक्ट है, हर नागरिक इफेक्ट होता है उसमें। क्यों? उसमें हर लॉ में 2 क्लॉज है। एपीएमसी एक्ट में 13-15 नंबर 13 और 15 क्लॉज, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मेरे ख्याल में 17 और 18 क्लॉज। उसमें इंडियन सिटीजन का एक बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट हटा दिया। आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, हर डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, माय राइट टू लीगल रेमेडी। अगर मैं सरकार हूं, मैं आपको बहुत डैमेज किया, आपके ये राइट है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ये कानून में सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार हो गया, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, चाहे वो आप किसान हो या मजदूर हो या एनजीओ हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर कहाँ जा सकते हैं? एक एपेलेट ट्रिब्यूनल बना दिया जिसमें बैठेगा सब कलेक्टर, डिप्यूटी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, एसडीएम बैठेगा, तो भी वो डाउटफुल है। जब बड़ा केस आएगा वो बैठेगा। और ये नायब तहसीलदार, ये सब डिप्यूटी कलेक्टर, ये अंबानी और अडानी के खिलाफ रूलिंग देंगे, जो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के रिलायंस में ज्वाइन करना है। और रिटायरमेंट के बाद बहुत सारा लोग ऐसा करते हैं। तो इट इज अ कंप्लीट ट्रैवेस्टी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब आप अपील नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आप फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट निकल गया। और वो क्लॉजेस सिर्फ वो कानून में नहीं, अभी नया कानून में ला रहा है, कर्नाटक में एंटी काउ स्लॉटर लॉ में भी ला गया। और एक अगर पूरा क्लॉज पढ़े, उसमें लिखा है यू कैनॉट प्रोसिक्यूट, केंद्रीय सरकार का किसी भी ऑफिशियल अफसर को, राज्य सरकार का किसी, वही शब्द में वर्बैटिम मैं आपको बता रहा हूं, राज्य सरकार का किसी भी अफसर को आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। और सिर्फ सरकारी ऑफिशियल नहीं है, और अदर पार्टीज एक्टिंग इन गुड फेथ। ये गुड फेथ अदर पार्टीज कौन है? कॉर्पोरेट जगत। हम सब जानते हैं, अदानी जी, अंबानी जी सब गुड फेथ में ही करते हैं, आपके लिए करते हैं। तो यू कैनॉट प्रोसिक्यूट देम ऑल्सो, यू कैनॉट फाइट देम, यू हैव। इसमें क्या किया देखो, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अटैक है ये कि आपने एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी बना दिया। छोटा सा एग्जीक्यूटिव, उसको लेके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज का पावर आपने उसको दे दिया। दिस इज वन ह्यूज प्रॉब्लम विद दोस लॉज। इट इज ऑल्सो एंटी पार्लियामेंट एंड एंटी डेमोक्रेटिक। पार्लियामेंट में जब ऐसा एक लॉ आएगा, पहले आप 2/3 ऑफ द स्टेट्स का सब ये अप्रूवल लेना चाहिए, लेकिन वो अलग बात है। पार्लियामेंट में पहले जून महीने में पिछले साल ये लोग ऑर्डिनेंस लाया, किसी को कंसल्ट करने के बिना, सिर्फ कॉर्पोरेट लॉयर्स को कंसल्ट किया होगा। तो पंजाब का किसान, बहुत राज्य में किसान प्रोटेस्ट किया, हमको कंसल्ट करो, ये कानून मत बनाओ।
लेकिन अगस्त में कानून लाया पार्लियामेंट में और सितंबर 15 तारीख को वो सब पास हो गया। वहां कैसा पास किया, उनका भी डाउट है, मेजॉरिटी नहीं है, तो 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हटा दिया। हाँ, गलाटा हो रहा है, आप गलाटा कर रहे हैं, मार्शल से लेके आपको हटा दिया। फिर वोटिंग लिया जी। और वो वोटिंग में तब भी वोटिंग नहीं लिया, डिवीजन ऑफ वोट नहीं दिया, वॉइस वोट लिया। देखिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है वॉइस वोट के लिए, डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए। वॉइस वोट है सरकारी कन्वेंशन, कानून नहीं है, वो सरकारी कन्वेंशन है। अगर मैं बताता हूं साहब, स्पीकर साहब 1 घंटा एक्सटेंशन करो लंच का, तो हर आदमी चिल्लाएगा हाँ करो करो करो, वो वॉइस वोट में कर सकते हैं। बेसिक चेंज टू कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन नॉट मेक बाय वॉइस वोट। तो बहुत लेवल में ये एंटी पीपल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी फार्मर, एंटी फेडरल, एंटी स्टेट है। सर, जैसे जब मोदी जी आए देश में तो इन्होंने नारा दिया था कि देश के किसानों की आमदन हम दुगनी कर देंगे। 5 साल के अंदर हमने उसका इनकम 2 गुना बढ़ा देंगे। और देखिए वो क्या हुआ, वो एनएसएस रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। किसान का इनकम 4-5 अलग अलग सोर्सेस से आती है। क्रॉप एग्रीकल्चर से, फसल से, मतलब एग्रीकल्चर से, खेती से जो इनकम आती है। फिर हर किसान कुछ मजदूरी भी करते हैं वेज लेबर के लिए, उसका इनकम से, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। तीसरा वो करेंगे लाइव स्टॉक का, पशुपालन, ये गाय भैंस, उसको चला के वहां भी एक इनकम आएगा। 4-5 सोर्स ऐसा है उसका। 5 साल में जो बढ़ाना था, 2 गुना बढ़ाना था क्रॉप इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, वो डिक्लाइन हुआ क्रॉप इनकम। कौन सा इनकम बढ़ गई? वेज लेबर का और लाइव स्टॉक का। लेकिन अगर वेज लेबर का इनकम बढ़ रहा है, इसका मतलब आगे और कॉन्ट्रडिक्शन आएगा किसान और एग्रीकल्चरल लेबर के बीच में, कंपटीशन बढ़ रहा है ना उनके बीच में। तो क्रॉप इनकम हैज फॉलन आफ्टर यू हैव प्रॉमिस्ड टू डबल इट इन 2 years। तो दिस इज द सिचुएशन। और अभी भी असर पड़ रहा है ये नया कानून का। तो मोदी जी आके प्रॉमिस किया 5 साल में करके दूंगा आपको, और देखो क्या किया, क्या करा और क्या आपको दिया। सर, देश के किसानों की हालत दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है। खुदकुशियां किसान कर रहे हैं, अपने हकों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ को दबाने का भी जतन हो रहा है। 11 महीने हो गए पंजाब के किसानों को बॉर्डर पे बैठे हुए। हिंदुस्तान के किसानों के साथ पूरे देश का किसान एजुटेशन कर रहा है। अब कब तक परखेंगे इनकी, वो कब तक चलेगा? कब तक सरकार ऐसे ही देखिए अपना? मैं ज्योतिषी नहीं हूं, ये नहीं कह सकता हूं कि 222 में क्या होगा और 224 में क्या होगा, लेकिन ये बताता हूं जो संघर्ष कर रहा है दिल्ली दरबार के दरवाजा पे, वो सिर्फ पंजाब किसान के लिए नहीं कर रहा है जी। देश का हर नागरिक के बिहाफ पे लड़ाई कर रहा है जी। उसका संघर्ष इट इज इन फेवर ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। दूसरी बात, जो मीडिया, सिंपल बात जो मीडिया नहीं कहते हैं ऑडियंस को, जो संघर्ष वहां चल रहा है सिंगूर, टीकरी, शाहजहांपुर, दुनिया में पिछले 5 साल में दुनिया में ये सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे महत्वपूर्ण, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक संघर्ष वही है। आप दिखाए हमको पिछले 5 साल में कहाँ इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। और कब ऑर्गेनाइज किया? ऑर्गेनाइज हुआ पैंडेमिक के हाइट में। तो आपने सवाल पूछा कि
इस समय क्यों लाया वो कानून? इसलिए लाया कि उसका खेल था, उसका हिसाब, उनके हिसाब में, उनका कैलकुलेशन में जून में कोविड पीक था, जून से अगस्त तक कोविड पीक में रहा। सितंबर में डेडली डेथ टोल तो बहुत बढ़ गया 2020 में। उसको कहना, उसको उनकी समझ में, सरकार की समझ में अभी तो करना है इसलिए कि ये लोग रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। सब घर में डर में बैठे हैं, सब डर में बैठे हैं उनके घर में। कौन बाहर आएगा? क्या ताकत है उनके पास? क्या ताकत लेके हमसे? वो उसका इतना गलत कैलकुलेशन था और दुनिया में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया वहां। एक बात। दूसरी बात, मैं नहीं कह सकता हूं कि अगले साल क्या होगा, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि जो किसान लोग दिल्ली के दरवाजा पे बैठे हैं वो इस देश का राजनीति में बदलाव ला गया। दैट हैज हैपेंड। मैं आपको एक बात बताता हूं। तमिलनाडु में इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, जिसमें एंटी बीजेपी का वाइप आउट हुआ। वहां ये अफसोस की बात है, सिर्फ एक ओपिनियन पोल, एक सवाल पूछी गई। वो सवाल था वो सिर्फ किसान के लिए नहीं, तमिलनाडु का जनरल इलेक्शन प्री ओपिनियन पोल। व्हाट इज योर एटीट्यूड? आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द फार्मर्स सिटिंग इन दिल्ली, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में? और जवाब मिला 82% टोटल सॉलिडेरिटी। अगर वो सवाल आप केरल में पूछा होगा 90% से ज्यादा होगा, आंध्रा में 90% से ज्यादा होगा। लोग देख रहा है यहां क्या हो रहा है, और लोग की समझ में आई है कि सिर्फ ये वर्ग, किसान वर्ग, पूरा दुनिया को दिखा रहे हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। हाँ, कोविड है, पैंडेमिक है, लोग मर रहे हैं, लेकिन हम रेजिस्टेंस करेंगे। हम घुटने पे नहीं गिरेंगे, हम रेजिस्ट करेंगे। They have already changed the politics of the country this year. पता नहीं आगे कौन कैसा होगा, लेकिन आप बताइए, अभी जो फरवरी में 5 राज्य में चुनाव आ रही है, आप बता सकते हैं कि एक भी राज्य में ये इश्यू नहीं आएगा? फार्मर्स का इश्यू नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये लोग जो बैठा है वहां, हर जनसंख्या के लिए लड़ाई किया और इस देश का राजनीति में कुछ तो बदलाव लाया। ये साईनाथ जी, आपने बहुत ही बड़ी बात कही है कि किसान आंदोलन में ये सबसे लोगों को जागरूक तो किया किसान आंदोलन ने, और राजनीति में भी बड़ा बदलाव आएगा, इसके संकेत हैं। जो लोग सोचते हैं कि किसानों को दबाकर कारपोरेटों को हवाले कर देंगे खेती को, वो भूल जाएं। ये तो बहुत क्लियर है आपका इसमें, ये व्यू पॉइंट जो है बहुत अच्छा मैसेज है। सर ये बताइए, किसान मर रहा है, कारपोरेटों की फिक्र पड़ रही है मोदी सरकार को। ये तो खुद कहते थे कि हम तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे जब सत्ता में आएंगे, तो ना तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की, तो ऊपर से जो संगी है किसान की वो और दबा दी गई। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो किसान मर रहा है उनका, और जिस एक तरफ किसान मर रहा है, दूसरी तरफ आपने कहा हमारा अरबपति को और धन दौलत उनके हाथ में पहुंच रहे हैं। जो मीडिया, जो लोग अंबानी को सपोर्ट करते हैं, ये कभी आपको मेंशन नहीं करते हैं मीडिया में। फोर्ब्स मैगजीन, आप जानते हैं दुनिया में सबसे मशहूर मैगजीन है कैपिटलिस्ट वॉइस का, वो हर साल दुनिया का पूरा, हर देश का अरबपति लिस्ट डालते हैं। पैंडेमिक में
इंडिया नंबर 3 पर पहुंच गया, यूएसए और चाइना के बाद। और अंबानी जी उसका धन दौलत, जिस साल भारत का जीडीपी 7.7% कम हुआ, सरकार कहना है 7.7%, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि 12%, 15% गिर गया। लेकिन अंबानी जी का धन दौलत फोर्ब्स मैगजीन के प्रकार 127% बढ़ गई। मतलब 42 अरब डॉलर से 84.5 अरब डॉलर। तो डबल से ज्यादा किया उसने। गौतम अडानी का वेल्थ 467% इंक्रीज। फार्मर का क्रॉप इनकम डिक्लाइन हुआ। लेकिन ये बताइए पंजाब का जीडीपी क्या है? पंजाब का जीडीपी पिछले साल 85.5 अरब डॉलर। ये पंजाब का जीडीपी 85.5 अरब डॉलर। और अंबानी का वेल्थ क्या है? 84.5 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर का फर्क है। लेकिन वो उसका इकोनॉमी बढ़ रहा है और पंजाब का कम हो रहा है। और इस पंजाब से आप पैसा लेके और उनके हाथ में देना है। ये प्योरली डन फॉर कॉरपोरेशन, सिर्फ अंबानी जी के लिए नहीं, लेकिन मैं उनका नाम ले रहा हूं कि वो नंबर 1 है, रिचेस्ट है। तो अंबानी जी सिर्फ नॉट ओनली रिचेस्ट मैन इन इंडिया, मीडिया का सबसे बड़ा मालिक है। बिगेस्ट मीडिया ओनर इन इंडिया अंबानी जी। और जो मीडिया वो ओन नहीं करते हैं उसमें वो सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है। कौन उसके खिलाफ बात करेगा? कौन सा मीडिया, बड़ा मीडिया उनके खिलाफ बात करेगा? ये भी नहीं मेंशन करेंगे कि इनका जीडीपी, इनका वेल्थ और पंजाब का जीडीपी 1 पॉइंट तक पहुंच गया। तो ये बहुत सारा डैमेज आने वाला है, आने वाला दिन में और डैमेज होगा। और इसलिए वो किसान वहां सिंगू, टीकरी, शाहजहांपुर में हर दूसरा नारे में किसका नाम ले रहे हैं? अंबानी, अडानी। वो जानते हैं, बेवकूफ नहीं है। सर, जैसे आपने मीडिया की बात करी, आपका जो पत्रकारिता में स्थान है देश दुनिया में, उसका नाम लिया जाता है। आपने उन लोगों के साथ पत्रकारिता की, उन लोगों के पास जाकर, वो गरीब तबके के लोग, मैं इसलिए नहीं आपकी बड़ाई करूँगा कि आप पी साईनाथ हैं, आप पी साईनाथ हैं, वो बने हैं, उसके लिए काम करा, इसलिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मीडिया की भूमिका को आप कैसे देखते हैं इस पूरे आंदोलन में? मीडिया ने क्या दिखाया, क्या नहीं दिखाया, क्या उसने अपना रोल अदा किया, या सही किया, गलत किया, इसके बारे में क्या आपकी? मीडिया ने ये दिखाया है कि हम कॉर्पोरेट जगत का दलाल है, वही दिखाया आपको। मीडिया ने ये दिखाया है कि हमका जो कुछ इंटीग्रिटी था 10 साल पहले, वो भी नहीं है अभी। देखो, मीडिया का मॉरल दुनिया शिफ्ट हो गया। इस देश में मीडिया ये स्वतंत्र संग्राम का बच्चा है। द इंडियन मीडिया इज द चाइल्ड ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अभी दिसंबर में 200 साल एनिवर्सरी होगा। फर्स्ट इंडियन जर्नल, नेशनलिस्ट जर्नल, राजा राम मोहन रॉय ने कौमुदी संवाद शुरू किया और अप्रैल 2022 में आएगा उनका एक और एनिवर्सरी, राजा राम मोहन रॉय का, जो पत्रकार 10 भाषा में लिखता था। 10 भाषा। अरे, इंडिया में सबसे मॉडर्न, इंडिया में सबसे
प्रोलिफिक जर्नलिस्ट लैंग्वेज में मुझको बहुत आई एम वेरी डिससेटिस्फाइड। पंजाब में भी लोग ये नहीं जानते हैं कि मोस्ट मल्टीलिंगुअल जर्नलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी इंडिया, उसका नाम था भगत सिंह। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जिसने 4 भाषा में लिखा था, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी। कीर्ति में लिखा था, अकाली में लिखा था, आई डोंट नो, डजन्स ऑफ जर्नल्स, डजन्स ऑफ पत्रिका में वो लिखा था। और 5वां भाषा भी वो सीख रहा था, फारसी। जब वो जेल में था, he was learning the 5th language. When underground he learned the 4th. He learned थोड़ा बंगाली भी सीखा उसने, लेकिन लिखा नहीं, अटेम्प्ट नहीं किया। एक तो पीस लिखा था बंगाली में। और ये सब करके उसका फांसी हुआ जब उनका उम्र था 23। अरे मैंने 23 साल तक, मेरी 23 साल में पहला आर्टिकल नहीं लिखा, पब्लिश हुआ। ये है एक्स्ट्रॉर्डिनरी। राजा राम मोहन रॉय वो इंटेलेक्चुअल था, एलीट था, किसान नहीं था, एलीट था वो, और 10 भाषा में किया। और उसका इंटेग्रिटी देखो, राजा राम मोहन रॉय का। जब वर्नाक्युलर प्रेस कहते हैं, देशी भाषा के प्रेस के खिलाफ जब वो अंग्रेजी सरकार कानून लाई, उसने बंद कर दिया उनका पेपर। बोला था कि मैं ये गुलामी, ये ह्यूमिलिएशन मैं नहीं लेता हूं। यू हैव नो राइट टू टेल मी व्हाट आई कैन पब्लिश। हाँ, वहां से आप यहाँ पहुंच जाइए 221 में। आप देखो पूरा उसका मॉरल एटीट्यूड, उसका मॉरल यूनिवर्स, उनका मॉरल दुनिया इस मीडिया का बदल गई। इसलिए कि कॉर्पोरेट ओनरशिप है, 80% से ज्यादा ओनरशिप मीडिया का, जो जिसके पास बड़ा सर्कुलेशन और रीच है, वो कॉर्पोरेट ओनरशिप है। कभी कभी एक अखबार मिलेगा जो ट्रस्ट ओनरशिप है, जो इंडिविजुअल ओनरशिप है, वो सब मरने वाला है, इसलिए कि कॉर्पोरेट सबको ले रहे हैं। और ये देखिए कोविड के समय में आपका मीडिया, आप एग्री करेंगे मुझसे, मेरे साथ, जब पैंडेमिक आया, पब्लिक नीडेड जर्नलिज्म मोर देन एवर बिफोर। कभी भी इतना नीड नहीं था पत्रकारिता, पत्रकार के लिए। और हमारा बड़ा मीडिया क्या किया, 2500 लोग को नौकरी से निकाल दिया, 10-15 हजार नॉन जर्नलिस्ट मीडिया वर्कर को निकाल दिया। आप कैसा रिपोर्टिंग करेंगे? हाँ, मैं पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया चलाता हूं। हमने उस पैंडेमिक पीरियड, हम एडवर्टाइजिंग नहीं लेते हैं, सरकार का ग्रांट नहीं लेते हैं, कॉर्पोरेट का डायरेक्ट ग्रांट नहीं लेते हैं, लेकिन इस पीरियड में हमने 3-4 लोग और रिक्रूट किया, इसलिए कि हमारा दुनिया में, हमारा यूनिवर्स में, हमारा पर्सपेक्टिव में पब्लिक चाहते हैं। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मीडिया दलाल की भूमिका निभा रहा है। हमारी जर्नलिज्म में जब हमें पढ़ाया जाता है, जब सरकार की चमचागिरी छापते हो, सरकार की प्राप्तियों को दिखाते हो, तो आप विज्ञापन मिलते हैं, हाँ, तो आपको दलाल माना जाता है। जब आप लोगों की बात करते हो तो आप पत्रकार माने जाते हो। यही हमें पढ़ाया जाता है जर्नलिज्म में। इस पूरे किसान आंदोलन में किसानों को ऐसे कारपोरेटों के दलालों ने अतवादी तक कह दिया, खालिस्तानी तक शब्द यूज कर दिए, ऐसा इतना घिनौना दिखाया गया चेहरा। लेकिन मैं ये भी कहता हूं आपको, बहुत सारा पत्रकार है जो उसमें सहमत नहीं है, जिसका सिंपैथी किसान लोग के साथ है। अरे बड़े बड़े न्यूज़पेपर और चैनल में कुछ पत्रकार हैं, मुझको आके देते हैं खबर, दूसरा नाम में लगा दो, लेकिन ये मैंने आपके लिए किया, इसलिए कि आप कैरी करेंगे। हाँ,
जहां मैं काम कर रहा हूं टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स में वो नहीं कैरी करेंगे। फोटो भी मैंने लिया आप लोग के लिए। तो आम पत्रकार में सिंपैथी है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो डिसाइड नहीं करेंगे क्या छपेंगे क्या नहीं छपेंगे। जैसे अभी नए न्यू मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, सरकार ने उसके लिए भी, मोदी सरकार ने पॉलिसी बना दी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो है अब पत्रकार खुल के पत्रकारिता नहीं कर सकता, उसकी संघीय इस तरीके से घूट दी गई है, उसको इतने रूल्स एंड रेगुलेशन में बांध दिया गया है कि जैसे हम आज़ाद मुल्क में रह नहीं रहे। इसलिए लोग को किसी भी, अब तक किसी भी अखबार ने लिखा है कि सिर्फ कोविड की वजह से इस देश में 700 से ज्यादा पत्रकार मर गया, ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण पत्रकार, जिसका पगार मिलता है 5,000 6,000 मंथली, मर गया। और ये है कि इतना कंडीशन आ गया कि वो हमने पीपल्स आर्काइव से हमने एक फंड किया, हमको कुछ प्राइज मिला, मुझको फुकुओका प्राइज मिला रिसेंटली जापान से, उससे 12.5 लाख 25 फैमिली जिसका मेन ब्रेडविनर पत्रकार रहा और मर गया कोविड की, 25 फैमिली में हम हर परिवार को 50,000 दे रहे हैं। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि देखो, हमने मेन मीडिया को फोर्स करना है, हम सच को एक्सपोज करके उनको फोर्स करना है, इसको कवर करो, इसको कवर करो। वो क्यों करेंगे? वो मीडिया तब जो भी सरकार मांगते हैं वो झूठ बोलते हैं। वी हैव टू ब्रिंग मॉरल प्रेशर ऑन देम टू चेंज देम, वो है। जैसे आपने मीडिया के और देखिए, एक इससे सब ये पूरा एक्सपीरियंस इस साल से मैंने किसान वर्ग के लिए भी एक आइडिया बना रहा हूं। सिर्फ मेरा आइडिया नहीं है, बहुत लोग सोच के। आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट बताया, अगर इस देश में कोई भी किसान को 2 शब्द अंग्रेजी जाते हैं, वो शब्द जाते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, उनका नारा। अभी 16 साल हो गया। स्वामीनाथन जी मेरा पर्सनल फ्रेंड है, मैं जानता हूं उसको, और मैं तारीफ करता हूं, मानता हूं कि ये बड़ा रिपोर्ट है, अच्छा रिपोर्ट है। लेकिन दोनों यूपीए एनडीए दोनों इसको खत्म कर दिया। 2004 में पहला रिपोर्ट आया, 2006 में पहला दूसरा रिपोर्ट, 5वां रिपोर्ट आया, लास्ट रिपोर्ट। तो मैं कह रहा हूं कि देखो, अच्छा रिपोर्ट था, स्वामीनाथन जी बहुत बढ़िया आदमी था, लेकिन सरकार, ये ऑफिशियल कमीशन था और सरकार ने उसको खत्म कर दिया। तो मैं कह रहा हूं कि अभी 2221 में जब 1 साल हो जाएगा दिल्ली के दरवाजा पे, किसान कमीशन बनाओ, जो किसान वर्ग कंट्रोल करते हैं। हर देश में, हर गांव में आप हियरिंग्स लगाओ और हम जवाब दे सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं। जो बुद्धिजीवी दलाल है सरकार का, जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट कमेटी में किसान इश्यूज पे ऐसा एक कमेटी बनाया जिसमें एक भी किसान नहीं। तो आई एम सेइंग दैट वी नीड दिस किसान कमीशन। हर तालुका, हर जिला में आपको नॉन फार्मर्स भी आना चाहिए, जो टीचर, प्रोफेशनल, पत्रकार, कमिटीज होना चाहिए लोकली। पंजाब में हो सकते हैं किसान बचाओ देश बचाओ आंदोलन, किसान बचाओ देश बचाओ, ऐसा होना चाहिए। जर्नलिज्म में हम सब एफर्ट करना है कि मोनोपोली ओनरशिप को खत्म करो। जो अगर कानून लाना है तो उसमें उसके लिए झगड़ा करो। मोनोपोली ओनरशिप नहीं होना चाहिए, जहां
हर चैनल, हर पोर्टल, हर अखबार एक आदमी का हाथ में हो रहा है। तो वहां भी हम बदलाव ला सकते हैं, पब्लिक एक्शन चाहिए उसमें। जी, जैसे सर अभी आप स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करते हैं, तो अभी उसमें है कि एमएसपी, अब किसान भी यही मांग कर रहे मिनिमम हैं, सपोर्ट प्राइस, एमएसपी लागू की जाए पूरे देश में। किसानों का है कि अभी जो है इसके कानून बनाया जाए एमएसपी को लेकर, दूसरा उनका है कि ये कानून रद्द होने चाहिए, रिपील होने चाहिए। मेरे दोनों सवाल आपके साथ जुड़े हैं। पहला सवाल मुझे है कि पंजाब की जो हालत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फसलों की, चोने की हो, कनक की हो, हरियाणा में जो कॉस्ट है, देश के जो अन्य राज्य हैं उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग है, जो लागत है, कीमत है। क्या आप समझते हैं कि ये एमएसपी कानून आने से एक पूरे देश में एक ही फार्मूला लागू होगा? नहीं, एमएसपी देखिए, एमएसपी बहुत साल रहे हैं जी, कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो एमएसपी किस चीज पे दे रहे हैं आज? 90% चावल और गेहूं, पैडी और गेहूं पे देते हैं। एक्चुअली 23 क्रॉप से ज्यादा, 23 क्रॉप पे एमएसपी है, देता नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखो, जब आप एमएसपी गारंटी का लॉ, कानून लाते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है जब तक आप प्रोक्योरमेंट का गारंटी नहीं देते हैं। अगर आप प्रोक्योरमेंट का गारंटी देते हैं, फिर एमएसपी का, इट मीन्स अ लॉट, एमएसपी का कानून विल मीन अ लॉट। नहीं तो सरकार क्या करते हैं, मैं विदर्भा में देखा हूं जहां किसानों का आत्महत्या सबसे ज्यादा है, उनका सरकार का, राज्य सरकार का या केंद्रीय सरकार का, उनका टैक्टिक क्या है? बढ़िया एमएसपी अनाउंस करेंगे, खरीद नहीं करेंगे। जैसे हमारे पंजाब में मक्की की खरीद का जो भाव है, वो प्राइस है, वो नहीं मिलती है प्रॉपर। मतलब कहते हैं कि आप डिवर्सिफिकेशन करो, फसलों की विभिन्नता लेके आओ। अरे 23 मंडियां तो है नहीं। हाँ, 23 क्रॉप पे एमएसपी है, डिक्लेयर होते हैं, नहीं देते नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि एमएसपी गारंटी लॉ, उसके साथ प्रोक्योरमेंट गारंटी भी डालना है उस कानून में, फिर ये होगा। तो किसान, दूसरा जो मेरा सवाल है, किसान कह रहे हैं कि ये कानून रद्द होने चाहिए, करेक्ट, बिल्कुल मैं समझ। सरकार कहती है कि रद्द नहीं होंगे, रिपील नहीं हो सकते। क्या आपका कहना है, रिपील हो सकते हैं? कानून क्या कहता है? रिपील हो सकते हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब है ये, वो दूसरा सवाल आएगा। इस देश किस चीज पे चलते हैं? जस्टिस पे चलते हैं, न्याय पे चलते हैं, इंसानियत पे चलते हैं, या एक आदमी का ईगो पे चलते हैं? ये सवाल है। अभी ये देश 1.5 आदमी का ईगो पे चलते हैं। तो वो है प्रॉब्लम। देखिए, मोदी जी यहां गया, पेरिस गया, यूएसए गया, हर जगह गया, अब तक इस प्रधानमंत्री 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगाया इस देश में। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में सिर्फ एक प्रधानमंत्री, एक प्रेसिडेंट, सिर्फ मोदी जी, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होल्ड किया। और इस 1 साल में उसको टाइम नहीं मिला सिंगू बॉर्डर पे जाके किसानों से बात करो, टिकरी में जाके किसानों से बात करो, वो आपका इनकम डबल करेंगे 2222 तक, इतना तो करो। वहां आप हर महीने, हर हफ्ते मन की बात, और हर महीने आप पब्लिक एड्रेस करते हैं। अब तक किसान वर्ग के साथ बैठ के बात नहीं की आपने। इतना बहुत मुश्किल काम है क्या? कितना दिल्ली से कितना दूर पड़ता है किसान का?
इससे जानते हैं अंदाजा लगा सकते हैं। सर मेरा एक और सवाल आपसे है कि आपने खुदकुशियों के बारे में काफ़ी रिसर्च करा है, उसके आपने किसानों के कारणों का पता भी लगाया है क्यों है। पूरे देश में कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ किसानों ने की हैं, आत्महत्याएं की हैं, और इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, देश का 70% किसानों का आत्महत्या 6 राज्यों में होगा। मैं तो सिर्फ आपको ऑफिशियल नंबर ही दे सकता हूं और दूसरा नंबर नहीं है, वो भी बहुत फ्लॉड है, बहुत प्रॉब्लम्स है डेटा में, बहुत प्रॉब्लम्स है डेटा में। लेकिन नंबर 1 है महाराष्ट्र, नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका या आंध्रा, कभी कभी कर्नाटका कभी कभी आंध्र प्रदेश, अभी आंध्रा 2 हो गया, आंध्रा तेलंगाना। मध्य प्रदेश भी था नंबर 5 में, लेकिन वो भी 2 राज्य बन गई। तो मैक्सिमम 70% महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 6 राज्य में हो रहा है। लेकिन कुछ और राज्य में काउंटिंग सही नहीं हो रहा है और बहुत सारा एक्सक्लूशन है उसमें, इसलिए कि महिला किसान का आत्महत्या बहुत कम काउंट करते हैं, महिला किसान को बहुत कम काउंट करते हैं, इसलिए कि हमारा समाज में महिलाओं को किसान नहीं मानते हम। जी, पंजाब में बहुत किसान खुदकुशियां हो चुकी हैं, हो रही हैं, पंजाब का किसान। तो एक इस पे आप क्या सोचते हैं कि झोना जो कणक है, किसानों के पास और क्या बदल है? देखिए, जब से ये नया आर्थिक नीति शुरू हुआ जी, एग्रीकल्चर, देखो जब असमानता बढ़ जाएगी, जो सबसे नीचे है, जो जब सबसे कमजोर है, सबसे वीकेस्ट है, उस पे असर ज्यादा पड़ेगा कोई भी समाज में। हमारा समाज में किसान और खेत मजदूर सबसे नीचे है। तो ये प्रेशर्स आया, देखो उत्पादन लागत में, और जैसा हमने मार्केट के सवाल उठाया, ये किसान ने ऊंच अर्थव्यवस्था में ट्रैप फंस गया। बीज का दाम, बीज का प्राइस 300% से 500% तक बढ़ गई नया आर्थिक नीति आने के बाद। फर्टिलाइजर का डीएपी ले लो, डाई अमोनियम फॉस्फेट, हर किसान को डीएपी जानते हैं। 1991 में एक बैग जिसमें 50 किलोग्राम था, 180 रुपया था। आज 1450 रुपया, और 50 से 5 किलोग्राम कम कर दिया, 45 किलोस। इसका मतलब रेट बढ़ गया, वेट कम कर दिया। इतना अन्याय हो रहा है, किसान पे प्रेशर बहुत बढ़ गया। उनका देखो, किसान का बच्चे भी स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, उनका पिताजी माताजी भी कभी कभी हॉस्पिटल में जाना है। खेती पे उत्पादन लागत इतनी बढ़ गई, स्कूल का फीस इतनी बढ़ गई, डेली कंजम्पशन इतनी बढ़ गई। अभी डीजल, और अभी आज डीजल 108 रुपया है मुंबई, 107 रुपया है मुंबई में। तो ये सब प्रेशर बढ़ा के वो तनाव इतना बढ़ गया, और ये कर्जा बैंक्स ने शिफ्ट कर दिया, क्रेडिट किसानों के हाथ से कॉरपोरेट जगत के हाथ पे शिफ्ट कर दिया। मैंने आपको वो नंबर दिखाता हूँ। लेकिन ये सब प्रेशर के अंदर, प्रेशर के अंदर किसानों का आत्महत्या बढ़ गई। जी, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि मोदी सरकार जो खेती कानून का जो मॉडल हमारे देश में, हिंदुस्तान में लेके आ रही है, ये तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये इन देशों में तो फेल हो चुका है। करेक्ट, यूपीए ने भी ये लाया जी। क्यों, किसके प्रेशर में जी? क्यों, क्या एजेंडा है इनके पीछे? ये देखो, ये डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर। देखो,
आप बताइए दुनिया में कौन सा सेक्टर कॉर्पोरेट नहीं डोमिनेट कर रहा है जी। आप बताइए, अभी ये करने वाला है निजीकरण, पानी का निजीकरण, अभी ये करने वाला है फर्टिलाइजर कंपनीज का निजीकरण, वही हुआ यूएसए में वही। और ऐसे भी वैसे भी आपको 140 अरबपति मिला, डॉलर अरबपति, तो वो होने वाला है, वो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट है, उसका लॉजिक है, वो होगा। ये देश को बेचने का काम चल रहा है प्राइवेट हाथों में, हुई है यही आपका काम? अरे बेच रहा नहीं, उसको गिफ्ट में जा रहा है। जी जी सर, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।